Assalamu alaikum dear students. In our previous lecture about the title cellulose synthesis and composition of primary cell walls, so we discussed earlier cellulose synthesis and we have touched slightly to primary cell wall. But in this lecture, in lecture number 8, and that is the part B of the previous lecture, we will discuss the composition of primary cell walls in detail and as well as the functions of primary cell wall in this lecture. So my name is Dr. Umair Ashraf. I am Assistant Professor Botany in University of Education, Lahore, Faisalabad campus. Here in this slide, you can see that the matrix polymers are synthesized in the Golgi bodies or Golgi apparatus and secreted in vesicles. ये जो है जो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडीज़ हैं इनमें जो है ये मैट्रिक्स पॉलीमर जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं एंड देन इट रिलीज फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये जो मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं फिर ये जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे जो है वो ये इस तरह से जो मैट्रिक्स पॉलीमर्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं इधर गोल्जी बॉडीज़ में या गोल्जी अपरेटस में एंड देन दे आर एक्सपोर्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन वेसिकल्स। अब यहाँ पे जो है दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द हाउ द मैट्रिक्स पॉलीमर्स वेयर आर दे सिंथेसाइज्ड एंड हाउ दे आर ट्रांसपोर्टेड to the plasma membrane. Here in this slide you can see the structural components of primary cell wall. You can see the cellulose microfibrils are coated with hemicellulose such as xyloglucan. You can see here these are the cellulose microfibrils. Here you can see these are the cellulose microfibrils and the hemicellulose are also attached to the cellulose microfibrils. when you have hemicellulose जो हैं ये जो structures हैं these are all are hemicelluloses that are coated these cellulose microfibrils are coated with this hemicellulose, whereas pectins form an interlocking matrix gel perhaps interacting with structural proteins. आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो pectins हैं they are also involved in this structure of primary cell wall। और यहाँ पे जो है वो आप ये जो रेड कलर या पिंक कलर की जो है these are the proteins। तो इट मीन्स के अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हैं एक पे, दूसरे में जो है वो उसमें हेमिसेलुलोसिस हैं, थर्ड उसमें जो है वो पेक्टिन्स हैं जो मेजर कंपोजिशनल पार्ट्स हैं, और फोर्थ जो है उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आप देखें कि जो पेक्टिन्स हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ये भी आपस में इंटरमिक्सड है या इंटरेक्ट कर रही हैं और उसको जो है वो फर्दर जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट या उसको जो है वो रिजिड कर रही हैं। सो दीज आर ऑल दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं यू कैन सी हियर जो सेलुलोज microfibril, hemicellulose, pectins and structural proteins. They are involved in the synthesis or the structural composition of the primary cell wall. Here in this slide you can see the structural components of plant cell walls. इसमें जो है वो जो मेजर क्लासेस हैं उसमें सेलुलोज है और सेकंड में जो है वो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं, उसमें पेक्टिन्स हैं और हेमिसेलुलोसिस हैं जो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं। देन उसमें जो है वो लिग्निन हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। So these are the structural components of plant cell walls. Mostly the cellulose उसमें एग्जांपल है जो हमने देखी है पीछे माइक्रोफाइब्रिल्स दैट आर द 1,4-बीटा डी ग्लूकैन की जो चेन्स हैं उससे जो है जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दे आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। दिस मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन्स एंड हेमिसेलुलोज। पेक्टिन में फॉर एग्जांपल होमोगैलेक्टोलुरान, rhamnogalacturonane, arabinane and galactane. These are the pectins, whereas the hemicelluloses are xyloglucan, xylan, glucomannan, arabinoxylan, callose 1,3-beta-D-glucan, and whereas the 1,3 and 1,4-beta-D-glucan are only present in grasses.
This hemicellulose, the callose 1314 beta D glucan is only present in the grasses. Moreover, in plant cell wall there are also lignin are also present there, and there are some structural proteins that are also intermixed with the plant cell walls to make it more rigid, more complex. सो प्राइमरी सेल वॉल में जो एक पोर्शन था पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स वो हमने देखा. उसके बाद जो नेक्स्ट वन दैट इज द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. So cellulose microfibrils are actually a polysaccharide that is composed of 1,4-linked beta D glucose residues. जो है इसमें जो है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है कि जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दे आर 1,4 बीटा डी ग्लूकेन और दी ग्लूकोज रेजिड्यूज. जो ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं उनको हम ग्लूकेन भी कहते हैं. तो ये जो सेलुलोज है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो कि ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं दे आर रिलेटिवली स्टिफ इन स्ट्रक्चर. ये थोड़े से हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टिफ होते हैं. दे मेक अ हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रिबन. ये जो है एक रिबन की फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो है सेल वॉल वो ज़्यादा रिजिड होती है या स्ट्रॉन्ग होती है. एंड दीज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर रिलेटिवली इनअसेसिबल टू एंजाइमेटिक अटैक. इसमें जो है इसलिए इसमें जो एंजाइमेटिक अटैक है वो कम से कम होते हैं या ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द एंजाइमेटिक अटैक. क्योंकि इसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्मेशन हो रही है दोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर वेरी मच स्टिफ और हार्ड. इसलिए इसमें जो है वो एंजाइमेटिक अटैक जो है वो कम से कम होते हैं या जो है वो लेस अफेक्टेड होती है बाय द एंजाइमेटिक अटैक. सो सेलुलोज इज स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड रेजिस्ट डिग्रेडेशन. सेलुलोज कंपैरेटिवली जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है क्योंकि इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ चेन्स एंड दे आल्सो रेजिस्ट द डिग्रेडेशन. इसमें जो है इसलिए ये जो है वो इसमें डिग्रेडेशन जो है कम से कम होती है या वेरी निग्लिजिबल डिग्रेडेशन होती है प्लांट सेलुलोज में क्योंकि इनकी जो सेलुलोज है दैट इज़ वेरी मच हार्ड, दैट इज़ वेरी मच स्टिफ and that is composed of microfibrils that are 1,4 beta D glucose residues. जो नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स हैं प्राइमरी सेल वॉल में दैट आर दी हेमीसेलुलोजेस. हेमीसेलुलोजेस जो हैं वो सेलुलोज की निस्बत थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं. इट मीन कि जो सेलुलोज हैं वो हेमीसेलुलोज से ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा स्टिफ होते हैं जबकि जो हेमीसेलुलोजेस हैं ये जो है वो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेलुलोज. एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिकली बाइंड टू द सरफेस ऑफ द सेलुलोज. और ये सेलुलोज की सरफेस के साथ जो है बाइंड होते हैं उसके साथ जो है दे आर कनेक्टेड विद द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि हमने लास्ट जो है वो स्लाइड्स में उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है सेल प्राइमरी सेल वॉल की उसमें भी देखा है. So bind the hemicellulose bind cellulose microfibrils together in a cohesive network. Actually ये जो celluloses हैं ये hemicelluloses जो hemicelluloses हैं जो cellulose जो microfibrils हैं उसको आपस में connect करने में भी help करते हैं. उसको आपस में जो है वो they connect the cellulose microfibrils together जिसमें जो है वो cohesive network formation जो है उसमें help करते हैं. And because hemicelluloses are flexible as compared to celluloses, that's why they act as a slippery coating to prevent direct microfibril contact. उसमें जो है ये एक slippery coating है एक्चुअली जिससे जो माइक्रोफाइब्रिल जो कि सेलुलोसिस की स्ट्रक्चर हैं उसका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसको जो है वो प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ये इन बिटवीन दी माइक्रोफाइब्रिल्स हैं. इसलिए ये जो माइक्रोफाइब्रिल कॉन्टैक्ट है उसको प्रिवेंट करती हैं. ये उनके जो फाइब्रिल्स हैं उनके दरमियान जो है ये एग्जिस्ट करती हैं और एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो बनाती हैं. So hemicelluloses was previously termed as cross-linking glucans. पहले जो है हेमीसेलुलोजेस को क्रॉस लिंकिंग ग्लूकेन्स का जो है उनसे भी दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस लिंकिंग ग्लूकेन्स. लेकिन लेटर ऑन ये जो क्रॉस लिंकिंग ग्लूकेन्स थे इनको जो है वो इसका जो है इनको हेमीसेलुलोजेस के नाम से जो है वो कहा जाने लगा. These cross-linking glucans are actually now termed as hemicelluloses.
So these हेमिसेलुलोजेस इंक्लूड सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। हमने देखा है कि जो सेलुलोज हैं उसमें ऑलमोस्ट वन काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स हैं, जिसमें हमने जो है वो बीटा डी ग्लूकेन जो है या ग्लूकोज रेजिड्यूज जो हैं वो पढ़े हैं। जबकि जो हेमिसेलुलोजेस हैं इसमें डिफरेंट तरह के जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो प्रीडोमिनेंट हेमिसेलुलोज है बहुत सारी सेल वॉल्स में, that is the xyloglucan. So xyloglucan is the most predominant form of hemicellulose that are present in the primary cell wall. तो xyloglucan जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला हेमिसेलुलोज है सेल वॉल्स में। The next one is are pectins. Pectin forms hydrated gel phase in which the cellulose hemicellulose network is embedded. So जो hemicellulose और cellulose का नेटवर्क है प्राइमरी सेल वॉल में, जो नेटवर्क है ये उसमें जो है वो पैक्टिन्स भी मौजूद होती हैं, जो कि एक जेल हाइड्रेटेड जेल तरह की जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं सेल वॉल को। एंड दीज पैक्टिन्स आर आल्सो एक्ट एज हाइड्रोफिलिक फिलर। ये जो है वो हाइड्रोफिलिक फिलर के तौर पे भी एक्ट करती हैं। These pectins also prevent aggregation and collapse of the cellulose network. जो सेलुलोज नेटवर्क का आपस में कोलैप्स है, ये उसको या उसकी जो एग्रीगेशन है या उसकी जो स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन को जो है वो मेंटेन रखने में, हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखने में जो है वो हेल्प करती हैं, उसको कोलैप्स नहीं होने देती या उसको जो है वो एक प्रॉपर शेप में जो है वो उसको बाइंड किए रखती हैं। ये जो पैक्टिन्स हैं they also determine the porosity of the cell wall to macromolecules के जो सेल वॉल की जो है वो किन मॉलिक्यूल्स के लिए पोरस है, किन मॉलिक्यूल्स के लिए है वो पोरस नहीं है। वो जो पोरोसिटी है वो भी जो है वो पैक्टिन्स जो है वो डिटरमिन करते हैं सेल वॉल की। Then these pectin also include several different kinds of polysaccharide। जैसे कि हमने पढ़ा कि हेमिसेलुलोसिस में भी डिफरेंट तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इसी तरह जो पैक्टिन्स हैं उसमें भी दे आल्सो कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, जो कि पैक्टिन्स में जो है वो मौजूद होते हैं। सो एक्चुअली ये भी एक पार्ट है जिसमें हेमिसेलुलोज सेलुलोज के अलावा जो पैक्टिन्स हैं दे आल्सो also take part in the formation of primary cell wall in the plants। so ये एक्चुअली उसमें जो उसके स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और ये जो है डिटरमिन करते हैं कि सेल वॉल जो है किन मॉलिक्यूल्स के लिए पोरस है और किन मॉलिक्यूल्स के लिए पोरस जो है वो नहीं है, किन को जो है वो पास होने में अलाउ करेगी और किसको जो है वो पास होने में अलाउ नहीं करेगी। The next components of the primary cell wall are the structural proteins। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का रोल प्राइमरी सेल वॉल में है वो अभी अनसर्टेन है, वेल अंडरस्टूड नहीं है या वेल डिटरमिन्ड नहीं है। ताहम फिर भी जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं ये भी जो है सेल वॉल में, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ऐड करती हैं या उसको जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। And these structural proteins also assist in the proper assembly of other wall components। जो दूसरे सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं जिसमें पैक्टिन्स हैं, जिसमें हेमिसेलुलोजेस हैं, जिसमें सेलुलोजेस हैं, उनकी जो प्रॉपर असेंबली है और उसकी जो है वो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है उसमें भी ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करती हैं। ताहम इनका जो स्पेसिफिक रोल है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। It is not well understood, it is going to be investigated कि उसका जो है वो स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं। ताहम ये जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और इनका जो है वो सेल वॉल के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनकी असेंबली में भी इसका रोल है। Here in this slide you can see the proportions of structural components of primary cell wall on dry weight basis। अगर हम जनरल या ओवरऑल व्यू में देखें कि ड्राई वेट बेसिस पे जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें जो उसके जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं, जिसमें सेलुलोज है, जिसमें हेमिसेलुलोज है, जिसमें पैक्टिन्स हैं, जिसमें जो दूसरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, वो उनकी क्या प्रोपोर्शंस हैं। आल्दो ये प्रोपोर्शंस जो हैं वो वेरी कर सकती हैं डिफरेंट प्लांट टाइप्स की बेस पे। ताहम अगर हम इन जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो प्राइमरी सेल वॉल है इट कंटेन्स
25% सेलुलोज, उसमें जो 25% जो है वो सेलुलोज है, 25% जो है उसमें हेमी सेलुलोजिस होते हैं, 35% जो है उसमें पेक्टिन्स होते हैं, और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ये तकरीबन जो है वो 1 to 8% तक जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। ये इसकी जो है वो अगर हम ड्राई वेट बेसिस पे इसका जो है वो एनालिसिस करें तो हमें ये प्रपोर्शंस मिलती हैं। ताहम ये प्रपोर्शन जो है दे आर वेरिएबल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जो है वो प्रपोर्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। नॉर्मली जो सेकेंडरी वाल्स हैं या सेकेंडरी जो सेल वाल्स हैं उसमें जो है दे कंटेन मच हायर सेलुलोज कंटेंट्स। जो सेकेंडरी सेल वाल्स हैं उसमें जो सेलुलोज कंटेंट्स हैं उनकी प्रपोर्शन जो है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वाल जो है वो ज़्यादा हो सकती है या ज़्यादा होती है। और हम दूसरी तरफ देखें तो इन ग्रासेस जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं प्लांट्स को हम ग्रासेस कहते हैं, एंड रिलेटेड स्पीशीज द मेजर मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम दोज दैट मेक अप द मैट्रिक्स ऑफ मोस्ट अदर लैंड प्लांट्स। के जो मेजर मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं जो प्रपोर्शंस दूसरे लैंड प्लांट्स में हैं उनमें और जो प्रपोर्शन ग्रासेस में हैं इनकी जो मेजर मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं वो डिफ़र करती हैं। इट मीन्स के ये जो मेजर पॉलीसैकेराइड्स मैट्रिक्स हैं इनकी जो प्रपोर्शंस दूसरे लैंड प्लांट्स में होती हैं वो ग्रासेस में नहीं होती। ग्रासेस में जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होते हैं। ये जो मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं जिसमें हम सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं, इनकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो ग्रासेस में और दूसरे जो बाकी के लैंड प्लांट्स हैं उनमें जो है वो वेरी करती है या डिफर करती है। So here are some important points that are related to the primary cell wall। तो इसलिए मैंने ये जो है वो इसको इंक्लूड किया है इस स्लाइड में ताकि हमें पता चल सके कि प्राइमरी सेल वाल जो है वो उसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि प्राइमरी सेल वाल जो है इट कंटेन 75 to 80% वाटर इन द मैट्रिक्स। उसके मैट्रिक्स में जो है वो तकरीबन 75 to 80% तक जो है वो वाटर होता है। The hydration state of the matrix is an important determinant of the physical properties of the wall। कि जो सेल वाल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट हैं उसमें जो मैट्रिक्स की हाइड्रेशन स्टेट है कि उसमें वाटर कंटेंट्स कितने हैं, ये भी जो है जो सेल वाल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक वन ऑफ द पैरामीटर ये भी है कि उसमें कितने जो है वो वाटर कंटेंट्स या वाटर की प्रपोर्शन या परसेंटेज जो है वो कितनी है या उसकी जो हाइड्रेशन स्टेट है वो कैसी है। सो द रिमूवल ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल जैसे कि द रिमूवल ऑफ वाटर मेक्स द वाल स्टिफर एंड लेस एक्सटेंसिबल। अगर हम जो प्राइमरी वाल है उसमें से वाटर को रिमूव कर दें या उसमें जो वाटर कंटेंट्स हैं वो कम कर दें तो उससे जो है सेल वाल जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, ज़्यादा स्टिफ हो जाएगी और लेस जो है वो एक्सटेंसिबल होगी, जिससे जो है फिर वो वाल जो है वो रप्चर होने के भी जो है वो चांसेस होते हैं। सो ये हम जो है हम देख सकते हैं ड्राउट कंडीशन में या लेस वाटर डेफिसिट कंडीशन में या लेस वाटर अवेलेबिलिटी कंडीशन में ये स्टिफनिंग इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन में प्ले आ रोल इन ग्रोथ इनहिबिशन बाय वाटर डेफिसिट। जैसे कि हम देखा कि हम ये सुनते आए हैं या पढ़ा हुआ है कि ड्राउट कंडीशन में जो प्लांट की ग्रोथ है वो इनहिबिट होती है या वो कम ग्रोथ होती है। उसकी रीज़न यही है कि जो वाटर कंटेंट्स जो हैं सेल वाल में वो कम पड़ जाते हैं और जो है सेल वाल जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है और स्टिफ हो जाती है, जिससे जो सेल है वो उतना अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकता या एक्सपेंड नहीं कर सकता, जिससे जो है वो ओवरऑल जो ग्रोथ है प्लांट की वो इनहिबिट हो जाती है या रुक जाती है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दी प्राइमरी वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। So here are some important functions of the primary wall। यहाँ पे जो है वो जो प्राइमरी वाल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिस्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन इज द प्राइमरी वाल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो शेप प्रोवाइड करती है और जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करती है। सेकेंडली दीज प्राइमरी सेल वाल्स मेंटेन एंड डिटरमिन सेल शेप। जो सेल शेप जो है उसको मेंटेन भी करते हैं और डिटरमिन भी करते हैं, जो प्लांट मॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है वो सेल शेप जो है वो डिटरमिन होती है या सेल की जो है फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी।
एंड ये जो सेल वाल्स हैं दे आल्सो रेजिस्ट इंटरनल ट्रिगर प्रेशर ऑफ सेल। सेल का जो इंटरनल ट्रिगर प्रेशर है जो कि वाल्स पे या सेल वाल पे वो डालता है, उसको भी जो है ये रेजिस्ट करते हैं, ताकि जो है सेल जो है वो रप्चर ना हो, सेल इंजरी ना हो, उसको मैक्सिमम हद तक जो है ये रेजिस्ट करते हैं सेल जो ट्रिगर प्रेशर है उसको। देन दी प्राइमरी सेल वाल आल्सो कंट्रोल रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ये जो ग्रोथ का रेट है और जो ग्रोथ की डायरेक्शन है को उसको भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। एंड अल्टीमेटली दीज सेल वाल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट आर्किटेक्चर एंड फॉर्म। जो ओवरऑल प्लांट का आर्किटेक्चर है, जो उसकी शेप है, उसको भी उसके लिए भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो प्राइमरी सेल वाल हैं। देन दे आल्सो रेगुलेट डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल थ्रू द एपोप्लास्ट। हमने पढ़ा है सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे, और जो रूट से जो है वाटर की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द जाइलम। सो एक जो एपोप्लास्ट पाथवे है दैट इज थ्रू द सेल वॉल। तो इस वजह से जो है जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें जो मटेरियल की डिफ्यूजन है उसको भी जो है वो रेगुलेट करती है ये जो प्राइमरी सेल वाल्स हैं। दीज प्राइमरी सेल वाल्स आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, डिहाइड्रेशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो उसमें पैथोजेंस हैं उसके अटैक को जो है वो रेजिस्ट करती है, और डिहाइड्रेशन जो है उससे जो है वो प्लांट सेल को जो है वो बचाती है मैक्सिमम हद तक जो है। और जो दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसमें हीट स्ट्रेस है, टेम्परेचर है, ज़्यादा लाइट है या कोल्ड इंजरी है, इवन उन सब चीज़ों से जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं उनसे जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये जो प्राइमरी सेल वाल है। मैक्सिमम हद तक जो है ये उसको सेल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या सेल है या सेल मैट्रिक्स है उसको जो है ये प्रोटेक्ट करती है। So these cell walls are also source of biologically active signaling molecules। ये जो है biologically active signaling molecules हैं ये उसका भी source हैं। and they are also important for cell interaction। so ये cell interaction के लिए भी जो है वो important है। these are some important functions of primary cell wall जो कि जो है primary cell wall plants में जो है वो perform करती है, या उसकी जो है वो importance क्या है with respect to the plants। These are the references from where I have extracted the material to present you. Students may also consult these books to better understand about the mechanism and lecture that we have discussed in this lecture. इन दी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने जो है वो प्लांट जो है वो सेलुलोज सिंथेसिस की और जो प्लांट सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन की, कंपोजिशन की और उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।